My name is Gaurav Mishra. I'm a management graduate, Institute of Marketing and Management from here in New Delhi, from New Delhi itself, with a specialization in marketing and IT, information technology. So first of all, thank you sir for giving me this opportunity to share my views regarding my journey. Initially I was in sales, so transformation from the sales into the business analysis, from business analysis to the product mindset. So here I just giving you my view on the business analysis, then product ownership, then product management, and then what new things I just got from the industry. तो यहाँ से शुरू करते हैं. Initially हमें totally I'll say I am having approx 14 years of experience. Earlier 6 years I was in sales. Then I just tried to do something else because fortunately I was in software sales. So that's why what I was not doing as a business analyst at that time, that was the documentation and modeling. Other things means requirement gathering I was doing at that time. At the time of presenting your software in front of different customers, so that was my responsibility. Then qualifying the leads, so it like a logical reasoning to qualify the leads. That it was not a very tough journey. जब start किया मैंने तो initially sales से related काफी कुछ कर चुका था मैं, but फिर भी एक चीज थी नहीं अभी कुछ. I just want to do something different from the sales because the sales is not means earlier I just realized that sales is not my cup of tea at least. In 2017, in fact in 16, I just tried to be a business analyst. I joined a small institution. उसको मैंने join किया but वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जैसा कि I was expecting. Then मेरे जीवन में शुक्ला सर आए, तो वहाँ से QBI, जब मैंने QBI ज्वाइन किया था तो QBI it was a course of 6 months I think. So बहुत अच्छी तरीके से सर ने QBI में मुझे बताया गया. थोड़ा सा इजी मेरे लिए था क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर सेल से ही आया था. दूसरा थोड़ा सा एसेंस मुझे पिछले बिजनेस एनालिस्ट कोर्स में मिल गया था, लेकिन यहाँ पर आके बहुत अच्छा मेंटरशिप मुझे मिला. Mentorship in terms of what? In terms of tools and technology, in terms of vocabulary, in terms of new words which can be utilized at the time of your interview whenever you are sitting in front of interviewer. So it gives you a different type of confidence that time. But it is very necessary. Don't give up at the end of the day. 17 में जब ये मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ था उसके बाद भी जॉब नहीं लगा था और बहुत लोगों का. इट वॉज अ 37 स्टूडेंट्स बैच आई थिंक, और उसमें शुरुआत में ही काफ़ी कुछ लोग प्लेस्ड हो गए थे. वन गाय वॉज क्योंकि जस्ट वेंट टू कैनेडा आई थिंक दैट टाइम इफ आई कैन रिमेंबर. उसके बाद काफ़ी लोग अभी भी मुझसे टच में है. अनुपम सर, इफ यू रिमेंबर अनुपम, शारिक कॉल्स मी. हाँ सो लेकिन उन्होंने छोड़ दिया. दे जस्ट गिव अप. अब मुझसे होगा नहीं, समथिंग लाइक दैट. However, you see, Sharik's wife is a senior consultant. Yes. Am I correct? Yeah, definitely. At that time when she was looking for the business, I taught her as well. Yeah, okay. So तब मेरी बात हुई थी तो वहाँ पर ही सजेशन हुआ. He just discussed with me कि क्या करें यार. मैंने कहा जाओ ना, तुम्हारे पास तो यू जस्ट हैव अ जैम विद यू इन शुक्ला जी के पास जाइए आप और उनसे बात करिए. तो फिर वो बाद में बिजनेस एनालिस्ट हो गई. अभी वो और भी ऊँचे उस पर काम कर रही है. तो बहुत लोगों को जिन्होंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा तो कहीं ना कहीं मिला. देखो रेगुलर प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको पहुंचा देती है. जहां आप ब्रेक कर देते हो वहां पर आप फिर नहीं पहुंचते. मेरा एक्सपीरियंस यही था. 17 में शुरू किया, 17 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ा. Then 20. In 2020, I decided to quit my job and I just started my own venture, a small venture. मैंने अपना इनिशिएट किया और वहाँ पर मुझे फ्रीली काम करने का मौका मिला एज अ बिजनेस एनालिस्ट कह लो, क्योंकि वहाँ पर तो सब आप ही को करना. If you are an entrepreneur, then you have to do maximum works with your own. तो यहाँ वहाँ से करते but then COVID came into the picture and बहुत लोग इफेक्ट हुए, उनमें से मैं भी था. In 2021 last, I just got a job with the tag of senior business analyst. वहाँ से मेरी जर्नी एज अ बिजनेस एनालिस्ट स्टार्ट हुई. इट वॉज अ एडटेक कंपनी, एडटेक ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला. एक LMS हम लोग बना रहे थे और जो नंबर ऑफ यूजर्स थे उस प्रोजेक्ट पे, एंड यूजर को हमें 4 लाख साइमल्टेनियस यूजर, कंकरेंट यूजर्स के ऊपर मैं काम करता.
इतने लोगों के एक्सपीरियंस के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, 3 साल मैंने उसके ऊपर काम किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। देन आई जस्ट डिसाइडेड टू मूव ऑन। देन हियर इन गेडू आई एम जस्ट वर्किंग एज अ प्रोडक्ट ओनर सिंस लास्ट 2 years. And initially I just got a project that was the student management system. Means it पूरा एक DB हमें बनाना था students के लिए, because we do have a different universities across the globe under umbrella of GEDU, है ना। तो we do have the GBS Malta, GBS Dubai, ICN, then there is Schiller University, then different universities. Then a new word I just listened, that was the low code. ये एक नया क्या होता है, ये आई कुड नॉट रियलाइज दैट। अच्छा, आई जस्ट लिसन वन वर्ड, दिस इज द प्रोजेक्ट एंड यू जस्ट नीड टू यूज लो कोड नो कोड डिजाइनर, नथिंग कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे यही लगा कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, बिकॉज इट वाज अ न्यू वर्ड फॉर मी। इसी तरीके से एक्चुअली इट इज नॉट अ वेरी न्यू डिजाइनिंग अप्रोच, है बहुत पुरानी अप्रोच, बट समहाउ आई कुड नॉट इनकाउंटर विद दिस। और ये अप्रोच थी क्या कि आई जस्ट नीड टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, आई जस्ट नीड टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म दैट कैन बी 100% कॉन्फ़िगरेबल। इफ यू वांट टू ऐड एनी न्यू फॉर्म इन द सिस्टम, सो इट यू डोंट नीड टू कोड इट, यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर इट, सो दैट इट इज एज सिंपल एज इट इज। जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कहा अच्छा ये है, मतलब इट वाज अ न्यू वर्ड, बट काम मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि मैं पहले कर चुका था। I have seen the WordPress at that time, Joomla that time. So these are the CMS, you can see content management system. So almost यही चीज़ थी वहाँ पर। See, you can create your own menus, you can create your own forms, you can use the components as per your requirement, you can configure the properties of those components as per the requirement, you can build the workflows without any coding, you don't need to code anything. तो ये अच्छा प्रोजेक्ट था, ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है मैंने अभी एंड नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट फॉर वन यूनिवर्सिटी विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत अगर प्रोजेक्ट के बारे में देखो, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इट हैज, लाइक देयर इज अ LMS इंटीग्रेशन, CRM इंटीग्रेशन इज देयर, there is a payment gateway integration, then there is a financial system integration is there. But अगर हम एक सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे, so it will take more and more time and budget is also restricted. So what we did here, we just tried to build a plugin. अब हमारे पास एक ऐसा ऐप इंटीग्रेटेड प्लगइन है, whatever system you just want to integrate with the system, authorize it and it will communicate with your system. तो ये भी हमने कर दिया। इफ यू हैव एवर सीन दैट API डालते हैं तो उसका पूरा वो पोस्टमैन। तो जैसा पोस्टमैन है ना, एग्जैक्टली हमने वही बना दिया। इट इज अ वेरी स्मॉल मॉड्यूल, बट पोस्टमैन इज इटसेल्फ बिग प्रोजेक्ट। तो उसको भी हमने सर इंटीग्रेट कर लिया, मतलब थोड़ा सा कॉपी किया कि दिस टाइप ऑफ API भी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट इन दिस आफ्टर द ऑथराइजेशन। मींस सबसे पहले ऑथेंटिकेशन हो रहा है हमारे सिस्टम से किसी भी एप्लीकेशन का। उसके बाद क्या हम कर रहे हैं, उसके बाद जो है कौन सी APIs वी आर गोइंग टू कंज्यूम, उसको हम डिसाइड करते हैं, देन इंटीग्रेट दीज APIs, देन की वैल्यूज क्या क्या है उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, देन यू कैन इंटीग्रेट दिस सिस्टम। तो इस तरीके से हमने उस सिस्टम को भी जो है इंटीग्रेट कर। बड़ी अच्छी जर्नी रही है अभी तक। आज नाउ आई जस्ट मूव ऑन टू वन स्टेप अहेड। थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि नहीं अब हो गया, अब प्रोडक्ट ओनर भी बन गया, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट भी बन गया। नाउ इट्स टाइम टू डू लिटिल बिट बिग। So now I am looking for the product management profile, और उसी के लिए काम कर रहा हूँ। That's why I am here to take some inputs, valuable inputs from शुक्ला सर। और अभी तक बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। So that's why I just referred many students, more than many। बहुत लोगों को किया। अब ये मुझे नहीं पता है कितने लोग आए हैं यहाँ पर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जिसके अंदर मुझे कैपेबिलिटी लगती है कि यस ही कैन डू द थिंग्स व्हाटएवर आई हैव डन, तो उनको मैं रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि बता मैं भी सकता हूँ कोई चीज़, बट आई एम नॉट प्रोफेशनल टू टीच द थिंग। मैं कर सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं उस मैनर में उन चीज़ों को एक्सप्रेस शायद नहीं कर पाऊँ, बता नहीं पाऊँ। करना इज अ डिफरेंट थिंग, पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, पढ़ाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो
वही है कि स्टूडेंट आप अच्छे हो सकते हो, गुरु भी आप अच्छे हो जाते हो, क्योंकि वो मेरा काम नहीं, जो एक्सपर्ट है उसके पास पहुँचते हैं। तो हर बार मैं यही करता हूँ, जो मेरे पास आता है छोटा भाई अपना, उसको गुरु जी की सुपुर्द कर देता हूँ और फिर वो आशुतोष की तरह निखर के आ जाता है बाहर। इसी तरीके से बहुत अच्छी जर्नी थी मेरी। अब अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो I am here to address those all questions. Sir, same journey as you have. I have also same. I have also done marketing and data analytics in 2021 to 23 batch, and in my graduation I have done BTech in civil engineering, and same I have done the graduation in 2019, August 2019, and in August 2020. In January 2020, COVID hits. So I also planning to move into IT and marketing, and I am passionate about sales. So I have done also sales for 2 months in Moradabad in Legram, and I have also got the PPU. What have you done in graduation? Is it engineering or No. And I'm a simple graduate with a BSc in maths and chemistry. And then how you got sales in software company? It's a very good question, very interesting question. At that time we didn't have so many resources to decide or to analyze your potentials. Means what do you want to do in your future? It was a time of about 2005, 2006. So at that time, means my mathematics was also not that much good. It was very hard. ठीक है, I can do the things. तो वहाँ मैं अपने दोस्तों के पास जाया करता था। उस टाइम मैंने देखा कि ये maths means I cannot do the differentiation and these all things, but ये क्या कहते हैं उसको arithmetic that I can do. मैंने कहा ये तो मैं कर लूँगा, परसेंटेज एवरेज, हाँ ठीक है चलो, so let's start prepare for MBA. So that time I just prepared for MBA. I just got selected here in IIM New Delhi. It was Institute of Marketing and Management. That time it was a 50 years old college. अभी तो बहुत टाइम हो गया, 70 साल के आसपास इस कॉलेज हो गए. So it was a ठीक है अच्छा सा कॉलेज था, not that much very good college, not very bad college. तो अच्छा कॉलेज था. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम द कानपुर, सो दैट वाज माई कम्युनिकेशन स्किल वाज नॉट दैट मच गुड. इट वाज अ लिटिल बिट थिंग आई जस्ट नीड टू इम्प्रूव. तो वहाँ पर स्टार्ट किया मैंने, और जब MBA करने आया था तो यार यही लगता था कि यार, क्योंकि यहाँ तो दिल्ली के लोग थे, हमें तो 12 घंटे सोने की आदत होती ना छोटी जगह से. तो और यहाँ लोग 6 घंटे सोने के बाद भी ना दे फील एनर्जेटिक मोर देन, तो एटलीस्ट मोर देन मी. तो वहाँ पर मैं देखता था मेरे फ्रेंड्स थे, वो 6 घंटे में आराम से एकदम आते थे, यहाँ से द्वारका जाते थे, द्वारका से यहाँ भी आते थे, पूरे दिन उनको बाहर रहना था, और उसके बाद भी दे वर मोर एनर्जेटिक. तो यही थोड़ा सा एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है. उसके बाद जो है पहली जॉब मेरी भी सेल्स में ही थी, और सेल्स फॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर सेल्स, बस ये एक अच्छा डायरेक्शन मुझे मिला कि I was in the software sales. So there I just... You worked for which company while you were in software sales? Earlier it was in Amcor Solution. So they at that time prepared a accounting system. Okay. Using that SharePoint and Microsoft Dynamics. तो इन सबको मिला के उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया. I think it was a very good starting point. Someone who is studying software is already a business analyst to some extent. Obviously sir, because what I just developed a skill to demonstrate the system. First of all, to gather the requirement from the client, what is their requirement actually. Okay, then prepare the presentation on the basis of their requirement, then presenting this whole presentation to the requirement, then demonstrate your project in front of whole team of your customer. Correct. So these all skills I just developed there. तो ये इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये तो कर रहा है. अब what else I just need to do whatever I was not doing at the time of being a sales person. तो वहाँ मैं क्या नहीं कर रहा था, except documentation I was doing everything. केवल documentation ही तो नहीं कर रहा था, BRD तो नहीं बना रहा था, SRS नहीं बना रहा था, FRD नहीं बना रहा था, मॉडलिंग VPMN का यूज़ नहीं कर रहा था. That's all. देख रहा था, पढ़ रहा था उसको, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर शेयरिंग दोज ऑल डॉक्यूमेंट्स विद योर कस्टमर्स. और उनसे ही आपको पता लगता है व्हाट इज योर डेटा फ्लो, व्हाट इज द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस. तो ये
तो यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू रीड, एटलीस्ट हाउ टू रीड दीज ऑल टॉपिक, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या एंड पॉइंट है, बीच में क्या हो रहा है, सो दीज ऑल नोटेशंस यू हैव टू नो एट दैट। तो थोड़ा थोड़ा वो भी आ गया था। क्या नहीं आया था? केवल यही नहीं आया था कि बनाते कैसे, लिखते कैसे, क्या प्रॉपर फॉर्मेट है। फिर वो भी आ गया, देन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता चला गया। अभी ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो ये है देखिए, बिजनेस कुछ भी बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो, बस एक चीज़ में लगे रहना होता है। यू हैव टू डिसाइड फॉर द 6 months, यस आई विल गिव माई एवरीथिंग फॉर दिस थिंग फॉर एटलीस्ट फॉर द 6 months। उसके बाद कोई डिसीजन लेने की बात है तो है, अदरवाइज अगर आप करते हो तो एट लास्ट आपको मिल जाती है सक्सेस होती है। देखो छोटी बड़ी नहीं होती, तो सक्सेस मिलती है आपको, उसको बड़ा आपको बनाना होता है। सुपर। सक्सेस छोटी बड़ी नहीं होती है, सक्सेस मिलती है, छोटी भी हो तो आप उसको बड़ा बना सकते हैं। एवरीवन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, पहले आप ये समझ के चलिए। कुछ भी पूछिए आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं अभी अपने जॉब में? अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मुझे केवल विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है अपने इस सिस्टम में, बिकॉज द विजन इज मीन्स एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अलाइंड विद द विजन ऑफ प्रोजेक्ट और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन। ओके। क्यों? अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, वी आर जस्ट डेवलपिंग द प्रोडक्ट। अभी हमें ये नहीं पता कि हम एक्चुअली क्या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, और वी आर फॉर साइटिंग टू सेल दीज ऑल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ओके। इन नियर फ्यूचर। तो क्या होता है कि इट स्टार्ट्स विद अ प्रोडक्ट माइंडसेट एंड ग्रेजुअली वी डिलीवर द प्रोजेक्ट विद द सर्विस। तो ये थोड़े से चैलेंजेस है, अदरवाइज चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। जैसे सबसे पहले स्कोप क्रीप आता है। ओके। स्कोप क्रीप एक जनरलाइज वर्ड है। अब कोई बहुत बड़ी चीज अब नहीं रहेगी, लेकिन हमको ये पता होता है स्कोप क्रीप आएगा, स्कोप क्रीप जरूर है, बट योर प्रोसेसेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग to define, to analyze and to explain this scope. You should have every evidence that it is a scope creep। इसी तरीके से आप जो है इसको हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज स्कोप क्रीप तो आएगा, क्योंकि मुझे क्या बताया गया था, जैसे एक फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मुझे बताया गया था लो कोड। अब बाकी आप अपना सोच लो, लो कोड इट वॉज अ वर्ड ओनली। तो लो कोड छोटी चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ है। क्या क्या करेंगे? तो कंसेप्ट आता है MVP का, भाई MVP होना है, लेकिन MVP में चाहिए सब कुछ, तो क्या ही MVP रह गया? करेक्ट। तो स्कोप क्रीप हमेशा रहेगा पहला। इसके लिए क्या होता है, आपके सिस्टम में बहुत ही अच्छे प्रोसेसेस होने चाहिए, आपके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके पास हर एक चीज़ का साइन ऑफ होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे अगर कभी कोई ऐसी बात आती है कि ये तो मैंने आपको पहले बताया था, स्कोप क्रीप क्या होता है कि एक चीज़ जो बहुत छुपी हुई हो बाद में जो है निकल के आ जाए अपने आप। तो ये पहले बताया था, बाद में नहीं बताया था, क्योंकि इसका क्या होता है, टाइम और कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये एक चैलेंज बहुत बड़ा है स्कोप क्रीप का। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हमेशा आपको अपने क्लाइंट को भी ये बता इतने रिस्पॉन्सिबल रहना। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली हम बहुत पोलाइट रहना भी चाहिए, अच्छी बात है पोलाइट रहना, लेकिन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो एक्चुअली, इफ़ द थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन यू, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर कुछ सक्सेस होता है तो वो भी हमारा ही है, हम दोनों का है, और अगर कुछ फेल हो रहा है वो भी हम दोनों का है। तो उनको अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है कि भैया इस प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। इम्पोर्टेंस जब आदमी अपनी समझता है ना, तो वो फिर देनी पड़ती है हमें इम्पोर्टेंस। तो कुछ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कभी कुछ नहीं आता। और अगर आता भी है, मान लीजिए हम 4-5 लोग बैठे हुए हैं, एक ही सिस्टम को बनाना है और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इसको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम जनरली क्या करते हैं, जनरली कहते भी यही है कि सबको एक साथ बैठा के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, बिठाते हैं। यही इंटरव्यू में अगर पूछा जाता हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, तो यही हम बोलते हैं ना कि नहीं, सबको बुलाएंगे, सबको सामने बिठा लेंगे और कॉन्फ्लिक्ट हमारा सबको गिव अ चांस टू टू गिव देयर व्यूज ऑन द सिस्टम, है ना।
लेकिन होता क्या है, सबसे पहले आपके व्यू, इनके व्यू, सबका एक डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपके व्यूज के प्रो एंड कॉन्स लिख के दो, सबके व्यू के प्रो एंड कॉन्स लिख के दो। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या है, आदमी अपनी ईगो में होता है। इन्होंने अपनी बात तो कह दी, आपकी बात शायद अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन जब इनको ये रियलाइज होगा कि नहीं यार, मेरी चीज़ के ये प्रोज एंड ये कॉन्स, इनकी चीज़ के ये प्रोज एंड ये कॉन्स, तब जब आप इस डॉक्यूमेंट को बनाते हो, सबके साथ शेयर कर देते हो, उसके 2 दिन 3 दिन के बाद उनको भी चाहिए ना उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना। तो जब वो पढ़ते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि नहीं यार हाँ ये बात तो ठीक है, उसके बाद जब हम फिर से जो है उनको एक चैनल पे लेके आएंगे ना, तब ये ज़्यादा इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। So for a conflict resolution meeting, homework is very important. Homework is very important. And also transparency. Transparency and to understand what is the what is going the behind of your mind actually. कहना means you don't believe on the sentences. एक sentence बोल दिया उसके ऊपर हम believe नहीं कर सकते। क्यों बोला, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, क्यों बोला। और ये आपको ही एज अ बिजनेस एनालिस्ट मुझे तो समझ में आ रहा है आपने क्यों बोला, लेकिन शायद इनको नहीं समझ में आ रही चीज़। तो वी हैव टू ट्रांसफर दीज ऑल थिंग्स टू देम आल्सो, जिससे कि जो भी एक क्या कहा जाए, एक सहमति बने, एक कंसेंट बने, वो हमारे बीच में बन जाए। कॉन्फ्लिक्ट यही होता है कि जब कोई कंसेंट बन ही नहीं पाता, हमें वो कंसेंट बनाना है, तो सबका ईगो भी सेटिस्फाइड करना है हमें और सबको साथ लेके भी जाना है।